Class 9th, Jain. We are back with our lesson, and we are discussing about democracy. The very first chapter about democracy we are discussing, which is from civics part, and this is known as this particular part in your new books is known as the democratic politics, and this is the very first book of democratic politics. So today we are going to understand about we want to get a little more idea about democracy. So let us go with that. You already know that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. पीपल के द्वारा ही यानी कि लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई जाती है एंड वो रूल करती है. एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स और मेन वर्क or main features or characteristics of this particular democratic government. So number one is rulers elected by the people take all the major decisions. यहाँ पर जितने भी major decisions लिए जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही लिए जाते हैं. एंड सेकेंड इज election office offer a choice and fair opportunity to people to change the current rulers. So if the current rulers are not working well, then they can be changed through the next elections. So this is also a good point about democratic government. Third, this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. अब गवर्नमेंट चेंज तो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट चेंज करने का जो राइट है वो भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन के हाथ में नहीं है. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट इक्वल राइट, यानी कि this principle it is also based on the principle of equality. So democratic government offers equality also. Then the fourth is the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of constitution and citizens right. So this type of government also cannot do misuse of their power, because they have to follow all the rules and regulations which are stated by the constitution, and this constitution also protects the rights of the citizens. So this is very important here, these four major points. Now next topic is why democracy. So why democracy, we have already understood in this all previous sections of the chapter that democracy is important in order to achieve equality, in order to develop country in a better way, in order to rule the country in a better way. and सभी को इक्वल राइट दिया जाता है. कभी भी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, कभी भी प्राइम मिनिस्टर या जो हेड है हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट, उनको चेंज किया जा सकता है. एंड ये ऑटोक्रेसी नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का राज नहीं हो सकता, लोगों का ही राज होता है. सो दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज़ important. So we will not go through this particular discussion. Now there are two things: arguments against democracy and arguments for democracy. Now see, for everything there are some पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड देर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स. सो हर चीज़ में सारी चीज़ें अच्छी है, सारी चीज़ें बुरी नहीं होती. देर आर सम नेगेटिव, देर इज़ अ ड्रॉबैक्स ऑल्सो एंड सम बेनिफिट्स ऑल्सो. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. दैट मीन्स डेमोक्रेसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, एंड दोज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. नंबर वन, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. लीडर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, तो उस कारण से इनस्टेबिलिटी होती है, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है स्टेबल नहीं होती. कभी भी पर्टिकुलर लीडर जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है और वो चेंज होकर के दूसरे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स पावर में आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सीखने में टाइम लगता है. एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टेबल. सो जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं कंट्री में, वो भी थोड़ा सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है, हो सकती है अगली गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे. सो ये एक एग्जाम्पल था जिस कि इंस्टेबिलिटी के कारण क्या नुकसान हो सकता है. सो इंस्टेबल मीन्स जो लीडर्स हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं. डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. सो यहाँ पर मॉरलिटी का कोई स्थान नहीं है. लोग सद्भावना या
जो मोरल वैल्यूज़ पर चलने वाला व्यक्ति है उसका कोई सम्मान यहाँ पर स्पेशल सम्मान नहीं है या स्पेशल उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. इट इज़ ऑल अबाउट द पावर प्ले. आप में कितना बाहुबल है, आप में कितना पावर है, कितने समर्थक आपके पास है, कितना पैसा आपके पास है. इट्स ऑल अबाउट दैट. Then so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. So बहुत सारे लोगों की इसके अंदर राय लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है. इस कारण से इस पर्टिकुलर सिस्टम में थोड़ा डिले भी होता है. सपोज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले भी बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाएगा. छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. बट इसकी जगह अगर किंगशिप होती है, यानी कि अगर राजा होते हैं, मोनार्ची सिस्टम होता है, या ऑटोक्रेसी होती, या कोई डिक्टेटर होता, तो वो सिर्फ एक आदेश पारित करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड वो प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता. देयर वॉज नो नीड ऑफ टू मच कंसल्टेंस. ओके, तो डेमोक्रेसी में थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि सभी की सहमति ज़रूरी होती है. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Definitely जो elected leaders हैं उनको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं होता है. इस कारण से वो डिसीजंस भी जो लेते हैं वो लोगों के लिए कई बार गलत साबित हो जाता है. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. सो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पर बेस्ड ये सिस्टम है, इस कारण से थोड़ा सा करप्ट भी है. करप्ट मीन्स इसके अंदर ब्लैक का पैसा चलता है. ब्लैक पैसा मीन्स इन ईजी वर्ड्स यू कैन से जो लीगल पैसे नहीं हैं वो पैसे यूज़ होते हैं इसके अंदर. एंड सपोज इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप प्रचार कर पाएँ. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे और संभवतः आप हार भी जाएँ. सो करप्शन, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो करप्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं ताकि अगले चुनाव में उनको काम आए. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड और गुड फॉर देम. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. तो ऑर्डिनरी पीपल को कई बार पता ही नहीं होता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है. एंड दिस इज़ द सेम केस कि गवर्नमेंट कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो आम लोग विरोध करने लग जाते हैं कि ये गलत है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी उनको भड़का देती है कि ये चीज़ें गलत हो रही है, एंड विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट ट्रू. तो जस्ट बिकॉज द ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल थिंग्स, लाइक प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध हो रहा है. सो प्राइवेटाइजेशन गलत है या सही है, मैं आपको सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा. प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो भी सरकारी चीज़ें हैं उन सभी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है. Now I do not support any party, neither BJP nor Congress or any other party. But yes, in this particular decision of the government, I would like to support, because just tell me one thing. If you are ill, if you are sick, अगर आप बीमार हैं तो आप सरकारी अस्पताल जाते हैं या प्राइवेट अस्पताल. अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं देन आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध कीजिए, लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पताल जाते हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध मत कीजिए, बिकॉज यू नो प्राइवेट चीज़ें फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करती है. दैट्स इट. नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. दिस वर सम आर्ग्यूमेंट्स कि इसके कारण से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी हर जगह पर अच्छी नहीं है, हर एस्पेक्ट्स में अच्छी नहीं है. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट सारी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी इतने साल से हमारी भी कंट्री में है, बट डेमोक्रेसी कुड नॉट सॉल्व आउट करप्शन, इट कुड नॉट डेवलप कंट्री इन अ मच बेटर वे, एंड poverty has not ended up, and many more problems we are facing right now. So democracy is not a single solution for all the problems. It has some drawbacks also. Okay, so here this does not guarantee that the people's decision will be good. हाँ, लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना डिसीजन करेक्ट लेंगे. कई बार लोग भावनाओं में बहकर डिसीजन लेते हैं. जस्ट लाइक ये हमारी कास्ट का है, इसको वोट दे दो, ये हमारे धर्म का है, इसको वोट दे दो. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कई बार
ऐसा देखा जाता है कि गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम्स अराइज होती है. सो involving the people in these decisions does lead to delays in the decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can be set by big decisions and affect the government's efficiency. So yes, government की efficiency भी कई बार ख़राब होती है, because it is not sure that in the next particular session they are going to continue to be in the government or not, कि वो सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे उनको नहीं पता होता है. तो कई बार वो प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट वो स्टार्ट नहीं कर पाते. सो दिस इज़ इट दैट डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है. कई बार इफ़ यू टॉक अबाउट द डिसीजंस, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है, तो कई बार कोर्ट भी बहुत सारे डिसीजंस को चेंज करने, डिसीजंस देने में नाकाम हो जाती है या बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है. तो 10-10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद भी बहुत सारे केस के निर्णय आते हैं. लेकिन उसी जगह राजा या कोई दूसरा सिस्टम होता है तो शायद वो जल्दी हो सकता था. देयर वॉज द चांस. सो दिस आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. थैंक यू.